Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start our classes, Preparatory Maths classes for STHP 2023. This is Ahmad Khan, graduate of Mathematics Department, Sakhadab University, and other my other fellows will also take some sessions. So let's start from uh, the outline we have already shared with you, all the topics which are on day 1 and day 2. So we'll discuss. So let's start from zero and hope we'll cover all the required stuff which is given in the sample paper of Sakhrabi University. Okay, so day 1 and today is 1st January 2023. Okay, so what do you think? Mathematics, like other languages, I would say mathematics is also a language. So mathematics is a language. So you will say that कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस होती है उनके अल्फ़ाबेट होती है उनके लेटर्स होते हैं, मैथ की लैंग्वेज में उनके लेटर्स कौन से हैं? तो वो है 0 1 अप टू 9. Okay, so these 10 letters are like the alphabet of mathematics. We'll start from the very basic. Okay, so just for the overview. Okay, just for the overview we will have addition and subtraction. Okay, you already know this addition. Okay, so in addition, let's take a number, for example 5 0 9 3. Okay, and other numbers 2 7 and 0 4. Okay, we may take another number like 1 1 0 2. So adding these three numbers or any numbers, the rule is add first ones digits, then tens digit, then hundreds digit, and then uh, numbers on the thousand place. Okay, so 3 and 4 it becomes 7 7 and 2 9. Okay, और ये 9 है, इसमें से अगर मैं 0 0 ऐड करूंगा तो ये 9 ही रहेगा. एंड 0 प्लस 7 7 7 प्लस 1 8, और 5 and 2 7 7 plus 1 it becomes 8. So this is the addition of these numbers. एडिशन में सिंपली ये होता है कि हम नंबर्स को जो है मिला देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं. Okay, we may take another example. 5 7 0 5 and 2 8 8 and 9 1 0 2. Okay, so when we add 5 and 9 becomes 14 14 plus 2 16. तो 16 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उनका जो यूनिट डिजिट है 6 यहाँ पे लिखेंगे, जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा. अब 1 और 0 1 1 प्लस 8 9, ये बन जाएगा 9. अच्छा, और 7 और 8 15 15 1 16. तो अब 16 में 6 को इधर लिखेंगे, 1 फिर आगे चला जाएगा, 1 और 5 6 6 और 2 8. Okay, so I'm sure you all know the addition. Just I wanted to start from the very basics so that some students who are new, they may get idea. Okay, you may understand that like it's a revision. Okay, so you all are aware from the addition. Let's take one or two examples of subtraction also. So subtraction.
Okay, for subtraction. Okay, so for example, I have a number 6976. Okay, and I want to subtract 2343 from this number. So I will start from unit place. 6 में से 3 जाएंगे तो ये बचेंगे 3। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बचेंगे 3। 9 में से 3 तो ये 6, और 6 में से 2 तो ये बचेंगे 4। ओके, वी कैन टेक another example like 8004, फ्रेंड में से मुझे माइनस करना है 4035। ओके, सो अब देखें, 4 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो ये जो है आगे वाले नंबर से एक लेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ भी नहीं है तो ये फिर आगे की तरफ जाएगा। इनके पास भी कुछ नहीं है, ये इनकी तरफ जाएगा। अब इनके पास 8 है, अब एक इस तरफ चला जाएगा तो ये बचेंगे 10, लेकिन चूंकि इनको एक इस नंबर को देना था तो यहाँ पे बच जाएंगे 9। अच्छा, अब यहाँ पे 0 था, इनके आगे एक आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 10। अब इन 10 में से क्योंकि एक इनको इसको देना था तो ये फिर हो जाएंगे 9, तो एक यहाँ पे आ गया तो ये बन गए 14। अब 14 में से जो 5 जाएंगे तो ये बचेंगे 9। अब यहाँ पे था 9, 9 में से 3 जाएंगे तो ये होगा 6, और ये भी 9 था, 9 में से 0 जाएगा तो ये 9। अब देखिए, पहले 8 थे, लेकिन एक नंबर जब इन्होंने इनको दे दिया तो यहाँ हो गए 7। 7 में से 4 जाएगा तो 3। ओके, सो दिस वाज द एडिशन। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मल्टीप्लिकेशन का आइडिया क्या है, यानी हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, मिसाल के तौर पे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, आप हर स्टूडेंट को 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, 100 एक स्टूडेंट को दिया आपने, 100 आपने दूसरे स्टूडेंट को दिया, और 100 आपने तीसरे स्टूडेंट को। अब इस तरह से आप 100 देते जाएंगे, कितनी मरतबा। अब ये आप देखें, तो आपने 100 को ऐड करना है कितनी मरतबा, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स, यानी आपने 100 को 100 टाइम्स ऐड करना है। ओके, तो ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप 100 को 100 टाइम जो है ऐड करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, सिंपली 100 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ है, 100 के साथ। सही है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करनी हो तो आसान तरीका ये है कि ये दो जीरोस आप वैसे ही लिखें, और 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो ये हो जाएगा 0। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 0, 1 को 1 के साथ करें तो ये। तो देखें, ये बन गए 10,000। तो मल्टीप्लिकेशन ने हमारा काम आसान कर दिया, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को। ओके, सो वी कैन टेक एन इजी एग्जांपल लाइक 7 5 3 2 8 9। ओके, हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 200 से, तो जब भी जीरो हो ना उनको आप वैसे ही रखें। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ार 18, एक इधर चला जाएगा फिर, और 2 को 8 से करें 16, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 17, एक इधर चला जाएगा। 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, उसमें 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5। 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6। 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10, एक ऊपर चला जाएगा। 2 को 7 के साथ तो 2 7 ज़ार 14, और 1 15। तो ये इनका आंसर है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इनका एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का। फॉर एग्जांपल एक आसान वाला करते हैं ये भी।
अब इनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल 2 3 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। तो 8 3 जार 24, 2 आगे चला जाएगा, 2 3 जार 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, और 5 3 जार 15, एक ऊपर चला जाएगा, 3 3 जार 9 और 1 10। तो अब हमने यूनिट डिजिट से इनको कर लिया। अब एक डिजिट को हम क्रॉस दे देंगे, यानी यहाँ पे हमें नंबर नहीं लिखना, अब इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 जार 16, एक ऊपर चला जाएगा, 2 2 जार 4 और 1, ये बन जाएगा 5, 2 5 जार 10, एक ऊपर चला जाएगा, 3 2 जार 6 और 1 7। तो ये हमने, अच्छा अगर एक और भी नंबर यहाँ पे होता ना, हम क्या करते, इनको भी क्रॉस देते थे, इनको भी क्रॉस और आगे लिखते, और नंबर होता तो फिर 3 डिजिट्स को क्रॉस देते। तो ये एक पैटर्न है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 4, 8 और 6, ये बन जाएगा 14, एक ऊपर चला जाएगा, 5 और 5 10 और 1 16, एक ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 0 + 0 ये 1 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बेसिक थी, आई एम श्योर कि आप सबको ये चीजें तो आ रही। ओके, अब आते हैं डिवीजन की तरफ। ओके, सो डिवीजन ऑफ नंबर्स। अच्छा, डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आपके पास एक अमाउंट है, आप चाहते हो, सही है, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे उनको, जितना भी अमाउंट है। ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिवाइड 70 विथ 5, तो हम क्या करेंगे, 70 लिखेंगे और उनको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। अब इस पे टेबल जाएगी 5 की एक मरतबा, ये हो जाएगा, और ये फिर जीरो नीचे ले आएंगे, सही है। और जब इस पे टेबल लगाएंगे जो है 5 की, तो कितनी मरतबा जाएगी, 4 मरतबा। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, इनका कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट डिवाइड 3 5 2 1 13 बाय 12। अच्छा, इसका मतलब है कि इस नंबर को हम 12 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे और इनको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। तो देखो, अब 3 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो इन दोनों को साथ मिला के टेबल पढ़ो, 3 की कितनी मरतबा, 2 मरतबा। 2 12 24, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, एक डिजिट ऊपर से ले आएंगे, ये बन जाएगा 112। तो 112 पे आप टोले की टेबल पढ़ो, कितनी मरतबा जाएगी, ये जाएगी 9 मरतबा। तो ये बनेगा 108। अब इनसे माइनस करो, इनको माइनस करना होता है। तो 2 में से 8 नहीं जाता, एक यहाँ से ले लेगा, 12 12 में से 8 जाएंगे तो बनेंगे 4। यहाँ पे 1 था, वो उन्होंने इनको दे दिया था, यहाँ पे हो गया था 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 1 तो ये 0। ठीक है, अब ऊपर से लेंगे 1, तो ये बन जाएगा 41। अब 41 पे टेबल पढ़ो 12 की, तो ये बनेगी 6 टाइम, नहीं 6 टाइम नहीं, ये होगा, तो ये टेबल जाएगी 3 मरतबा। तो 3 12 36। ओके, तो ये हो जाएंगे, 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 5, और ये 0। ठीक है, अब ऊपर एक नंबर और भी रह रहा है, कौन सा, ये 3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये बनेगा क्या, 53। अब इस पे 12 की टेबल बढ़ो, कितनी बढ़ जाएगी, अब इन पे 12 की टेबल जाएगी 4 मरतबा, 4 4 12 48।
तो ये बना 48। तो 3 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ से ले लेगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 5। यहाँ 4 था, 4 में से 4 तो 0। अच्छा, ये जो आखिर में चीज आती है ना, ये वाली, इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं, जो आखिर में चीज बचती है जो भी, इनको हम कहते हैं रिमाइंडर। सही है, रिमाइंडर। और ये इनके भी नाम है। ये वाला जो नंबर है, ये पूरा नंबर, इसको हम कहते हैं क्वोशंट। अच्छा, ये जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर हो उनको हम कहते हैं डिवाइजर। अच्छा, ये जो नंबर है इनको कहते हैं डिवाइडेंट। डिवाइडेंट, ये याद रखनी, 4 5 नाम। यहाँ पे जो वो डिवाइजर, जिसको डिवाइड किया जाए वो डिवाइडेंट, आंसर आए वो क्वेश्चन, जो आखिर में बचे उनको कहते हैं हम रिमाइंडर। इनमें एक खास रिलेशन होती है, वो ये होती है कि अगर आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, क्वोशंट के साथ, और उसमें ऐड करो क्या, रिमाइंडर, तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा हमेशा डिवाइडेंट। सही है। तो ये चीज जो है हम मोस्टली इसमें यूज करते हैं। लेट्स वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ से वेरीफाई कर सकते नहीं, जो पहला हमने एग्जांपल किया था, वो एग्जांपल हमने किया था ये वाला, है ना। तो अब देखें, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, इसका डिवाइजर है 5। तो 5 उनको हम मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जो इनका क्वेश्चन था वो है 14, और रिमाइंडर इसमें था 0। तो देखो क्या आंसर आता है, 5 14 जार 70। और ये देखो, ये आपका अगेन क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ये रिलेशन याद रखनी है हमेशा। अच्छा, अब ये तो हो गया थोड़ा बहुत जो बेसिक्स, आई एम श्योर कि आप सबको इन चीज़ों का पता होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ कि नंबर्स कहाँ से शुरू है, क्योंकि देखें अब डे 1 के अंदर हमें नंबर सिस्टम को कवर करना है। डे 1 डे 2 इस दोनों दिनों में हम नंबर सिस्टम को देखेंगे। सो लेट्स सी कि ये नंबर सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। तो थोड़ा सा हम इनका इंट्रो कर देते हैं, किसका, नंबर सिस्टम का। सही है, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो पुराने दौर में जो है, बिल्कुल पहले की बात है, काउंटिंग तो उस वक्त भी लोग करते थे। मशहूर स्टोरी आपको पता होगा, शेफर्स जो लोग होते थे, धनार, वो जब ने शीप से लेके जाते थे तो वो काउंट करते थे पत्थर। अगर एक शीप ले गए तो उनको कहते थे एक। दो तो उनके लिए ये नंबर यूज करते थे, 3 के लिए ये यूज करते थे। तो वो पत्थर काउंट करके अपने पास रखते थे, जितनी भी शीप्स वो लेके जाते थे घर से। जब वापस आते थे तो वो फिर पत्थर काउंट करते थे, अगर पूरे हो जाते थे तो उनके लिए ये था कि अब शीप्स हमारी पूरी हैं। तो वो इस तरह से, वो आपने अभी भी गांव में देखा होगा, लोग ये इस तरह से, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो उनके लिए ये एक इसका मतलब है एक, इसका मतलब है दो, इसका मतलब है तीन, और अगर चार हो तो उसका मतलब है कि ये, यानी ये रिप्रेजेंट करता था 1 को, ये 2 को, ये 3 को, और ये 4 को, अप सो वन। ओके। और ओल्ड इजिप्शियन के लिए ये है, यानी जो एंशंट इजिप्शियंस थे, वो कहते थे भाई ये अगर आप 5 लाइंस दे दो तो ये शो करेगा किसको, ये नंबर ऑफ फिंगर्स है, नंबर ऑफ फिंगर्स इन द हैंड, सॉरी, ऑफ अ हैंड, ऑफ अ हैंड। क्योंकि 5 लाइन है ना, तो वो कहते थे ये हाथ की 5 उंगलियां हैं। और फिर जो है 5000 BC, यानी 5000 BC,
5000 BC में। तो यही इजिप्शियन ने एक सिस्टम दिया, नंबर सिस्टम उन्होंने दिया बेस 10 के ऊपर। नंबर सिस्टम उन्होंने दिया बेस 10 का। सही है। तो उन्होंने कुछ नोटेशंस जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई। वो उनके लिए नोटेशंस ये थी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो नोटेशन थी, ये इस तरह वाली, ये कहते थे ये जो नोटेशन है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। उनके लिए ये नोटेशन थी 10। और वो इस तरह की कोई नोटेशन करके ये कहते थे 100 है। सही है। और फिर जो है मिसाल के तौर पे, अब अगर उनको लिखना होता था 13, तो वो क्या करते थे, ये 10 की ये नोटेशन उन्होंने दे दी, उनके साथ ये 3 लाइन्स दे देते थे। तो इसका मतलब उनके लिए था 13। सही है। और मिसाल के तौर पे अगर उनको लिखना होता था 324, अब तो वो क्या करेंगे, ये वाले नोटेशंस 100 200 300, तो 300 हो गए, ये 10, ये 20, 1 2 3, 1 मिनट। हम्म, तो ये 1 और 1। तो ये जो चीज थी, ये इस तरह की नोटेशन उनके लिए थी। अच्छा, ये जो चीज है आप देखें, ये वाली थी 100, और ये दूसरी ये भी थी क्या 100, ये तीसरी निशानी ये भी थी 100, और ये फिर 10 10 यानी कि 10 + 10, और ये चार ये थे, यानी चार, तो ये बन जाता है 324। सही है। तो ये था जो है उनके लिए ओल्ड सिस्टम, इनका नंबर्स का काउंटिंग सिस्टम वगैरह। अब ये है कि जितने भी लोग थे वो अपने हिसाब से जो है सिंबल्स देते थे, और वो उनके लिए वो नोटेशंस डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट नोटेशंस देते थे। लेकिन चूंकि सोसाइटी के अंदर एडवांसमेंट आई और मैथ ने भी तरक्की की, तो फिर जो है लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड बनाना शुरू किए। तो फिर उन्होंने ये वाला, आपने मशहूर नंबर सिस्टम सुना होगा, ये वाले नंबर 1 2 3, 3 और। अच्छा, तो इनको विथ बेस 10 है, इनको उन्होंने कहा कि भाई ये काउंटिंग सेट है, दिस इज काउंटिंग सेट। अच्छा, हम इनको आमतौर पे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से हमारे लिए ये, अभी हम इनको कहते हैं नेचुरल, नोटेशन के लिए ये यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो उन्होंने जो इनको नाम दे दिया कि भाई ये काउंटिंग सेट है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडवांसमेंट की तरफ गई, इस तरह की इक्वेशंस आ गई। फॉर एग्जांपल x + 2 इज इक्वल टू 2। सही है। अब अगर इनको आप सॉल्व करें, आई एम श्योर आप सबको इनको पता होगा, ये x0, अब देखिए नेचुरल नंबर के अंदर तो जीरो है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके सिर्फ उसमें जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये एक नया सेट बन गया। अब इनको उन्होंने कहा ये जो है होल नंबर्स का सेट है। तो फिर उन्होंने नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके होल नंबर कह दिया। होल नंबर्स के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, होल नंबर। सही है। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं रुकी, उन्होंने कहा नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर्स भी हो गया। लेकिन फिर इस तरह की इक्वेशंस जो है ना अराइज हुई। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशंस, एक्स x + 4 इज इक्वल टू
टू। अब देखें जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 - 4, यानी एक्स का वैल्यू -2। अब देखें ना नेचुरल नंबर में ना होल नंबर में, इन दोनों में माइनस है ही नहीं, तो अब इनको कैसे डील करें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम होल नंबर को फिर एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे, यानी इन्हें जनरल आप इनको ऐसे कह सकते हैं एक्स प्लस ए, यानी ए कुछ भी हो सकता है नंबर, और बी, अब ए बी क्या है हमारे होल नंबर है फॉर एग्जांपल, और ए बड़ा है किससे, बी से। आप देखें ये वाला नंबर इससे बड़ा है, हमने भी वही लिया है 4 > 2। तो नेगेटिव नंबर की बात आ गई, उन्होंने कहा इनको फिर हम नाम दे देते हैं, यानी इस तरह का सेट हम बना देते हैं जिसके अंदर 0 है, 1 2 3, ये तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था होल नंबर। तो उन्होंने कोई नहीं, ये जितने भी नंबर हैं इनको नेगेटिव भी कर दो, -1 -2 और इस तरह से ये। अच्छा, 3 डॉट्स का मतलब है कि ये सो ऑन। तो इनको उन्होंने कहा कि भाई इनको हम कह देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी है। इसके लिए मोस्टली क्या यही सिंबल यूज होती है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो अब 3 सेट्स आ गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या ये इनफ नहीं था? नहीं। अब और किस्म की इक्वेशंस अराइज की, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन। अच्छा, अब इनका सॉल्यूशन आई एम श्योर आप सबको पता होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इनको ख़त्म करने के लिए 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करो, 2 से यहाँ पे भी, यहाँ सिंपली ये हो जाएगा 3/2। अब देखें ना ये नेचुरल नंबर में है, ना ये होल नंबर्स में है, ना इंटीजर्स में है, तो फ्रैक्शंस आ गई। सही है। तो अच्छा, इनके लिए आप जनरल भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल bx = a। अब b कोई भी इंटीजर हो सकता है, a भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। सही है, हमने इनको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया ना, a भी कुछ भी हो सकता है। बी के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि ज़ीरो होगा उस तरफ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के जो सेट्स हैं उनको उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, इनको हम रेशनल नंबर कह देते हैं। यानी ये जितने भी a/b वाले सेट्स हैं, जिसमें क्या ए बी इंटीजर से आएगा। अच्छा, इसका मतलब होता है सच डेट, ये वाले जो डॉट है इसका मतलब होता है सच डेट, यानी ए और बी, a/b सच डेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, यानी ए बी हम इंटीजर से लेंगे, और बी के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये आ, हमारी अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। तो ये इस तरह से जितने भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/5, 8/13, ये जितने भी नंबर है ना, ये सब के सब क्या हैं, ये रेशनल्स हैं। अच्छा, रेशनल इनको हम नोटेशन देते हैं मोस्टली क्यू की तरह से। सही है, इनको कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी जिसमें फ्रैक्शंस वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नो इशू, नेगेटिव हो। इस तरह से कोई नंबर हो डायरेक्ट, मिसाल के तौर पे 5, इनको पता है इनके अपान में कुछ नहीं तो 1 होगा ही होगा, तो ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, और बाकी इस तरह के नंबर तो फिर भी रह गए, यानी जो a/b में ना लिखे जाए, मतलब इस तरह से, यानी x सच दैट x को हम लेते हैं, यानी x अब a/b में ना लिखा जाए, कब, जब a और b हमारे इंटीजर्स हों और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उनको पता है क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये ऊपर कामा दे देते हैं। अच्छा, इनके 3 मतलब निकलते हैं इस चीज के, यानी इसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन 3 तरीकों से आप कर सकते हो इसको, वो इस तरह से कि भाई आप एक दो नंबर ले लें, 2 फॉर एग्जांपल, वो भी इंटीजर है, लेकिन आप एक नंबर लें जो कि इंटीजर ना हो, वी नो कि दिस इज नॉट इंटीजर। सही है। अच्छा, चलो इनसे पहले भी अगर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं, आई थिंक आई एम श्योर कि आप रेशनल तक तो आपको पता है, वो जो हमने ये कि यार p/q वाले या जितने भी a/b और फ्रैक्शन वाले नंबर हैं ये सारे रेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ तक बात नहीं बनी, हमें कुछ और इक्वेशंस अराइज हुई जिनके लिए रेशनल नंबर या नेगेटिव पॉजिटिव ये नंबर काफ़ी नहीं थे, तो हमें फिर ज़रूरत पड़ी इरेशनल्स की। वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये इक्वेशन x² = 2। अब देखें इनका सॉल्यूशन आप सबको पता है कि ± स्क्वायर रूट 2 है।
अब देखें, स्क्वायर रूट ऊपर किसी भी सेट में नहीं था, ना नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में, ना इंटीजर्स में, ना रेशनल में। तो इन नंबर्स को हमने कहा दे आर इरेशनल नंबर्स। और इनकी डेफिनेशन ये है कि भाई एक्स वो नंबर्स जो कि ए और बी में ना लिखे जाए। कब? जब ए भी इंटीजर हो और बी भी क्या हो, इंटीजर हो, और बी जीरो ना हो। सही है। अच्छा, इसके तीन मतलब निकलते हैं, वो ये कि भाई आप जो है एक नंबर लें जो कि इंटीजर हो। सही है। और एक नंबर लें जो कि इंटीजर, रेशनल या कोई भी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर ना हो, देन यू कैन राइट क्या, 2/√3। तो ये क्या बनेगा, ये इरेशनल होगा। आप इन सेट को कह सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। या दूसरा ये हो सकता है कि आप पहला नंबर इंटीजर से ना लें। अच्छा, डज नॉट बिलोंग के लिए हम ये दे के ऊपर से लाइन दे देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप 3 ले लें भले इंटीजर से, तो ये क्या बनेगा, √2/3। तो ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तीसरा ये हो सकता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये भी इंटीजर से नहीं बिलोंग करता, ये भी इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो इनकी जो फ्रैक्शन होगी 2/√3, या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3। तो ये भी हमारा क्या बनेगा फिर, इरेशनल होगा। तो ये तीनों केसेस है, यानी कम से कम एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों, वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो कम से कम इनमें से एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, यहाँ पे दोनों इंटीजर नहीं है। तो उस केस में इन नंबर्स को हम कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का आइडिया। तो अब इन सबसे बड़ा एक सेट आ गया जिसको कहते हैं रियल नंबर्स का सेट। उनके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं आर। अच्छा, उसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल यूनियन इरेशनल। यानी जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे इस सेट ऑफ रियल नंबर में आ जाते हैं। सही है। तो ये इनको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये था बेसिक इंट्रो ऑफ नंबर्स, किस तरह से जो है नंबर्स में एडवांसमेंट आई। और अभी तो मोस्टली अब हम रियल नंबर को डील करते हैं, आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। लेकिन आई थिंक टेस्ट की लेवल तक, STSP की लेवल तक मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल नहीं आते, जो कि सिंपल पेपर में आपके साथ भी शेयर हुआ है। उनमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का खास आइडिया नहीं है, तो हम रियल नंबर तक ही रहेंगे अभी। कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। सही है। लेकिन एग्जांपल से भी पहले थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं डिटेल में आपको फ्रैक्शंस और कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन तो मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि बात चल रही है रेशनल और इरेशनल नंबर्स की, थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि क्या सिर्फ P/Q वाले नंबर रेशनल होते हैं। यस, वो होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारे पास इस तरह का कोई डेसिमल नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल नंबर आ जाए ये 0 और क्या हो गया, हम्म, अच्छा, फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर नंबर आ जाए 0, 5, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर ये डेसिमल आ जाए, उनके दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट डू आई मीन बाय टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी सबसे पहले तो हमारे पास, मतलब हम डेसिमल फ्रैक्शन को देख रहे हैं कि उनमें से कौन से रेशनल होंगे, कौन से नहीं होंगे। डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनको, लेकिन अभी सिर्फ रेशनल रेशन की हद तक। तो डेसिमल्स हमारे दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जिनकी डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट हो, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग मतलब जिसके नंबर डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, मिसाल के तौर पे 0, 5, 7।
देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर इस तरह से होता 0 3 2 1 7, अब ये चलते जाते नंबर, यहाँ फॉर एग्जाम्पल 0 3 3 3, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आप उनको 1 दे के 2 जीरो दे दें। देखें ये देखो, पी अपॉन क्यू में आ गया ना, ए अपॉन बी में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, ये रेशनल्स होते हैं जितने भी नंबर्स हमारे। टर्मिनेटिंग जितनी भी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारे रेशनल्स होते हैं। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप्स है। सही है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फिर 2 टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, चलो वहीं से भी कर सकते हैं इनको। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे 2 टाइप्स हैं। अच्छा, इधर लिख देते हैं। अच्छा, एक होता है रिकरिंग। सही है। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। इसका क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर हो, मिसाल के तौर पे इस तरह से 0 3 3, सेम नंबर रिपीटेड हो तो ये रिकरिंग है। और अगर सेम ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, डोंट नो कि किसके बाद क्या नंबर आएगा, तो ये एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग है। तो जो रिकरिंग वाले होते हैं ये हमारे रेशनल होते हैं, जो नॉन रिकरिंग है वो हमारे होते हैं इरेशनल। सही है। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल में इनको देखेंगे कि इनको कन्वर्ट कैसे करें। अभी के लिए सिर्फ ये जहन में हो कि रिकरिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे ये वाला जो नंबर है ना, ये 0 3 3 3, ये बराबर है 1/3, तो देखो ये रेशनल है ये वाला। इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सही। अब इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं रिकरिंग को फ्रैक्शन में, इनके लिए फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये याद हो कि डेसिमल फ्रैक्शंस में 2 होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें 2 किस्म है। जो रिकरिंग होंगे वो रैशनल होते होंगे, जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो जो है इरेशनल्स होंगे। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये क्या है, क्योंकि टर्मिनेटिंग आप कहेंगे ये तो रैशनल है, क्योंकि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पी अपॉन क्यू में। सही है। और अगर मैं ये कहूँ 0 पॉइंट, या चलो 2/3 बार कर देते हैं। ऐसा बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीटेड है, जिनके ऊपर लाइन है ना, उसका मतलब है ये नंबर रिपीटेड है। तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे तो ये बड़ा चलो अभी कन्वर्ट की बात तो नहीं चल रही ना, बस क्योंकि रिकरिंग और, बस पता है ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या है हमारा, रेशनल है। सही है। अच्छा, अगर इस तरह का मैं कोई नंबर लिखूं, इस तरह का कैसे, ये देखें 0.01, और फिर 2 टाइम 0 फिर 1, फिर 3 टाइम 0 फिर 1, ये इस तरह चलता जाए पैटर्न, देख रहे हैं? अब ये जीरोस बढ़ती जा रही हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, ये नॉन रिकरिंग है ना, एक आर्डर के साथ रिपीटेशन नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारा, रेशनल है। और मशहूर मशहूर बड़ा फेमस आपने वो देखा होगा, पाई, ये भी इरेशनल है। क्यों? क्योंकि जब पाई की आप एक्सपेंशन देखेंगे वो इस तरह से होती है, 3.14159.265 तो ये चलता जाता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होती है नंबर, तो इस वजह से हम इरेशनल कहते हैं। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम पाई को कहते हैं ये 22/7 है, रेशनल कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रेशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। कभी कभी ये भी ले लेते हैं, या कभी कभी हम इनको कह देते हैं 355/1113।
सही है, क्योंकि इनकी अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो कुछ नंबर्स सेम हो जाते हैं, इस वजह से हम इनको पाई कह देते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्टली पाई जो है हमारा रेशनल नंबर है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए कि अब तक 5 लाख डेसिमल्स दरियाफ्त हो चुके हैं किसके, पाई के। यानी वी कैन डिटरमाइन 5 लाख डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल के बाद हम 5 लाख डिजिट उनके फाइंड कर सकते हैं या हो गए हैं पाई के थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के थ्रू हमने इतने डिजिट्स उनके देखे और वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत अभी तक जो हमने चीजें देखी, उसमें थोड़ी सी बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने देखी। उनके बाद हम नंबर सिस्टम की बेसिक्स पे गए, उनका थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया कि शुरू में किसी नंबर्स को समझते थे लोग, कौन सी नोटेशंस उनको देते थे। उनके बाद जो है हमने फिर देखा नेचुरल नंबर्स, और फिर देखा उनके बाद होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उनके बाद फिर रेशनल्स की एंड फाइनली रियल नंबर्स की। तो ये इनका थोड़ा सा बस इंट्रो था। आई एम श्योर कि आप सबको इनका पता होगा, लेकिन एक बार जो है रिवीजन के लिए सिर्फ ये ज़रूरी था। सही है। अब अब आते हैं हम जो है अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है फैक्टर्स। वैसे मेन ये भी मेन थे, तो सारी चीज़ें मेन है। सही है। तो अभी हम जो है अभी डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होती है, तो लेट्स डिस्कस के फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अच्छा, तो फैक्टर क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ फैक्टर क्या है। फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि इट इज ए नंबर, इट इज अ नंबर which divides which divides the dividend, which divides the dividend completely, completely लिविंग, completely का मतलब है लिविंग नो रिमाइंडर, लिविंग नो रिमाइंडर। यानी वो नंबर जो किसी डिवाइडेंड को completely डिवाइड करे, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो उनको कहेंगे दैट इज अ फैक्टर। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं इनका, एग्जांपल ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि which ऑफ द फॉलोइंग, which of the following following are factors of 10, और फैक्टर्स ऑफ 10। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो नीचे गिवन है वो 10 के कौन से फैक्टर हैं, कौन से नहीं है। जस्ट मोबाइल लाइट लगाओ। अच्छा, तो अब हम देखना चाहते हैं कि 10 के कौन से फैक्टर हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल एक में एक को चेक करना चाहता हूँ, दूसरा में 4 को चेक करना चाहता हूँ, तीसरा में 5 को चेक करना चाहता हूँ, और चौथा में 6 को चेक करना चाहता हूँ। यानी मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 10 के फैक्टर हैं या नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, क्योंकि डिवाइडेंड 10 होगा, यानी मैं अभी ए को सॉल्व कर रहा हूँ। उनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो कितनी मरतबा टेबल जाएगी, 10 मरतबा। अब देखिए रिमाइंडर क्या है, 0 है, यानी 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, 10 को। तो उसका क्या मतलब, तो सॉरी, 2 जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 10 को, रिमाइंडर 0 है, तो मैं क्या कहूँगा, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि वो कंप्लीटली उनको डिवाइड कर रहा है। सही है। अच्छा, इनको देखें बी को,
ये 10 है, उनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 के साथ, तो ये तो 2 मरतबा टेबल जाएगी। 2 4 8। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 2। रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो वो डिवाइजर नहीं है। ठीक है। सी देखें। सी में मुझे चेक करना है कि 6 फैक्टर है या 5 फैक्टर है या नहीं है। तो ये 10 है, ये 5 से मैं डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगी, 2 मरतबा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि 5 इज फैक्टर ऑफ 10। 5 इज फैक्टर ऑफ 10। सही है। और डी के अंदर क्या है कि आप चेक करो 6 फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 10 को डिवाइड करूँगा 6 के साथ, एक बार टेबल जाएगी, 4 बचेंगे, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं कहूँगा 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 10। सही है। तो ये अब पता चल गया हमें कि फैक्टर के लिए बिल्कुल ये बस चीज आसान है चेक करना, कि अगर उनका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने से तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ब्लैक यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 हमें कह रहा है कि फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, चलो 12, एंड बी के अंदर मैं लिखता हूँ 20। सही है। यानी मैं ये देख फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने फैक्टर्स हैं, यानी 12 को डिवाइड, कितने नंबर डिवाइड करते हैं 12 को। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज सॉल्यूशन। ओके। और मुझे 12 के फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले देखें, 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 into 12, और 12 को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 2 into 6, और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 into 4। सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1, यानी 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या कर रहे हैं, कैन डिवाइड, दे डिवाइड कैन डिवाइड 12 एग्जैक्टली। दे कैन डिवाइड 12 एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि उनका रिमाइंडर फिर 0 आएगा। उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि भाई 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम इस तरह से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं 12 के। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर में गिवन है फैक्टर्स ऑफ जो है 20। सो लेट्स फाइंड फैक्टर्स ऑफ 20। ये बी के अंदर है, हमें फाइंड करने हैं 20 के फैक्टर्स। तो मैं 20 को लिख सकता हूँ ना, 21 into 20, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 10, और 20 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 into 5। तो इससे देखें क्या पता चला कि 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 एंड 20 आर फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20, बिकॉज दे एग्जैक्टली डिवाइड 20। तो इससे हमें ये भी पता चला कि फैक्टर्स होते क्या हैं और हम कैसे फैक्टर से फाइंड करें। सही है। और दूसरा जो है वो है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है कि we define multiple as a multiple
is defined as a dividend into which a factor can divide, to which a factor can divide। तो कैसे, लेट्स सी। साल के तौर पे ये 18 ले लें आप। 18 को आप डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ, कितनी मरतबा टेबल जाएगी, 9 मरतबा, ये हो जाएगा 0। तो इसका क्या पता चला कि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ 18। तो ये जो डिवाइडेंड है ना, ये वाला, इसको कहेंगे ये मल्टीपल है। 18 इज मल्टीपल ऑफ 2। यानी अगर उनका फैक्टर है तो फिर 18 उनका मल्टीपल है। तो सिंपली जो डिवाइडेंड है उनको हम मल्टीपल कहते हैं। अच्छा, तो क्या एक नंबर का एक ही मल्टीपल हो सकता है? नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कहेंगे कि अ नंबर हैज ऑलवेज अनलिमिटेड 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 नंबर ऑफ मल्टीपल्स। यानी एक नंबर के इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। ये कैसे, लेट्स सी। तो चलो मैं सबसे पहले तो ये चेक करता हूँ, और इस वजह से लाइक आप यू कैन टेक एन एग्जांपल। देखें, 2 हमारा नंबर है, उनके कितने आप निकाल सकते हो मल्टीपल्स। 2 का 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, करते जाओ भाई। सबके सब क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल 1, वो ये है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोई मल्टीपल है या नहीं। इज 20 ए मल्टीपल ऑफ 3? यानी मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 23 का मल्टीपल है। तो आसान, बिल्कुल इनका वो क्या है यार भाई, 20 को डिवाइड करो किससे, 3 से। कितनी बार टेबल जाएगी, 6 बार टेबल जाएगी। तो रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो चूंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करा, हम कहेंगे कि एज 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। भाई अगर कोई फैक्टर ही नहीं है, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, अगर उनका वो फैक्टर नहीं है, सही है, तो हम कहेंगे कि 20 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। तो बाकी इनसे आगे शुरू करते हैं किसी एक दूसरे पार्ट की वीडियो में। ठीक है, इनसे आगे। थैंक यू।